जय जिनेन्द्र सब लोग। तो मैं हूँ समय सार जैन। जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक का नाम है व्हाट आर माय थॉट्स ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स। लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में मेरी क्या राय है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो बस इस वीडियो का एंड तक मेरे साथ बने रहे और प्लीज़ पूरी पेशेंस के साथ, ओके, पूरी पेशेंस के साथ और मतलब पूरी ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखिए और सुनिए। और 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 इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियंस है, आपका जो भी कमेंट्स है, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि ओपन रिलेशनशिप के बारे में मैंने एक एक वीडियो बनाया था। आई हैड मेड वन वीडियो अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन रिलेशनशिप्स। और उसमें मैंने ये कहा, उस वीडियो में मैंने ये कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी वन वेदर दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग। See, anyone who is doing an open relationship, I'm not going to judge them as right and wrong. But if you ask me my personal opinion, me personally I would never support, me personally I would never encourage any one of you to go for an open relationship. And the reason is because, see, when you talk about open relationship, the disadvantages are more than the advantages. you know uh, in open relationships, the disadvantages heavily outweigh the advantages. If you want to watch that video, please go and type in YouTube that advantages and disadvantages of open relationships and Samay Sar Jain 4559. You will see my video over there. Okay, so I just gave you a brief recap about that video. Now coming straight to today's topic. So what do I think about open relationships? Okay, and I know a lot of people may not agree with me, especially a lot of religious people. They will not agree with me, but I'll tell you my opinions, no matter what, because whatever I tell you, it is the fact. Okay, now there are actually two types of two types of live-in relationships. Did I just say this topic's name was open relationships a moment ago? Just forgive me. This video's name is what are my thoughts on live-in relationships. Okay, not open relationships. Okay, what are my thoughts on live-in relationships? That is the topic of this video. Okay. Now, speaking about live-in relationships, you need to understand that there are actually two types of live-in relationships, or rather I will say a lot of people, they actually practice, they actually do live-in relationships for two different reasons. बहुत सारे लोग दो अलग अलग कारण के वजह से लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, और मैं आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, और इन दोनों में कौन सा कारण, कौन सा रीज़न सही है और कौन सा रीज़न गलत है, वो भी मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, ओके. सो प्लीज़ watch this with full concentration, watch this with full focus, concentration and with patience. Okay, now, even me speaking as a Jain, speaking as a very open minded and speaking as a modern Jain, see, normally in our country
people generally, they don't support open, they don't support live-in relationships. A lot of people here in India, generally they don't support live-in relationships. But these days it is becoming quite common, and like all of lot of people, especially those who are, those who are like becoming boyfriend and girlfriend, many of them are following, many of them are living in live-in relationships. So if you ask me my opinion, what do I have to say about that? And not just speaking as a normal human being, speaking as a very open minded जैन person, okay? मैं एक अनेकांतवादी जैन होने के बावजूद, एक जैन होने के नाते, मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पहले टाइप का लिव इन रिलेशनशिप है, लोग इसलिए करते हैं ताकि जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पहले ठीक से जान ले, उसके बाद शादी करने के लिए प्रोसीड करेंगे वो लोग. द फर्स्ट रीज़न इज़, a lot of boys and girls, let's say for example, a girl and a boy, let's say for example, a girl and a boy has a crush. Let's say both the let's say a couple has got a crush on each other. First time they meet, okay, पहली बार दोनों एक साथ मिलते हैं. तो पहले मतलब डायरेक्टली शादी करने से पहले उन दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को अच्छी तरह जानना चाहिए. फर्स्ट the boy and the girl, they should spend time with each other, and they should try to understand each other. तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में क्या होते हैं कि मैं आपको पहला रीज़न बता रहा हूँ. मैं अभी तक आपको दूसरा कारण नहीं बताया, मैं आपको पहला कारण बता रहा हूँ. लिव इन रिलेशनशिप में ये जो पहला कारण है, यानी कि जो लोग एक दूसरे को पहले जानने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ महीने या फिर 1-2 साल भी एक साथ रहते हैं, और खास करके ये देखने के लिए कि क्या दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है. स्पेशली marriage is something which should be done with a lot of thinking. Before going for marriage, there is a lot of thinking process involved. There is a lot of thinking process, and a lot of a lot of personality examination, and the most important test is the couple's compatibility with each other. When it comes to marriage, always remember, it is the compatibility which matters. और ये लोगों को समझना चाहिए. Just blindly saying, oh, live in relationship गलत है, लिव इन रिलेशनशिप पाप है, लिव इन रिलेशनशिप हराम है, पराम है, and saying that live in relationship is like क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप तो हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए. ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले आप हर चीज़ को अनेकांतवाद दृष्टि से देखना चाहिए, ना ही एकांतवाद से. ऑलवेज लुक एट थिंग्स इन अ वेरी प्लूरलिस्टिक वे. look at every aspect of life pluralistically, okay. Look at everything in life very holistically and pluralistically, okay. Always practice pluralism, okay. Don't be narrow minded, you have to be open minded. So
speaking about speaking about this first reason, all those people who are living who are following live-in relationships now, all those people who are in live-in relationships right now, for this reason, that only for this reason, that both the boy and the girl are trying to understand whether or not both of them are compatible with each other or not, or let's say and even whether or not the boy and the girl's interests are going hand in hand or not. So all those people who are living in live-in relationships, for this reason, I totally support you. I'm sure many people will not agree with me, but I 100% support you. I totally stand with you, and this type of live-in relationship I completely support. I completely support those people who are who are in live-in relationships, for this matter, that the boy and the girl are trying to understand each other, and the boy and the girl are trying to understand whether both of them are compatible with each other or not. Because as I've said, even in my one of my previous videos, I had actually done this video. I think in no last year I had made, yeah, I had actually made this video, uh, exactly to be precise, 14 to 15 months ago, about 1 year and 3 months ago. 1 year and 3 months ago, I had made this video about you know the uh, the one single golden criteria for marriage. आप जाके YouTube में देख सकते हैं. इनफैक्ट मैं उस वीडियो का और मेरा जो ओपन रिलेशनशिप का जो वीडियो मैंने बनाया, वो वीडियो का और जो सिंगल गोल्डन क्राइटेरिया फॉर मैरिज, ये जो वीडियो मैंने बनाया, इन दोनों का वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्चुअली डाल दिया. आप जाके ज़रूर देख सकते हैं. ठीक है. सो this video I had made, the single golden criteria for marriage, that video, and the advantages and disadvantages of open relationships. So these two videos links, I'll be putting it down in the description, so please go and watch them as well. Okay, now proceeding with this video, as I was telling you, see, as I have always said, when it comes to marriage, okay, जब बात शादी के लिए आते हैं, जब बात शादी के लिए आते हैं, जब बात विवाह के लिए आते हैं, when it comes to marrying, when it comes to wedding, there is a lot of thought process involved, and the most important criteria is compatibility. सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है compatibility. तो इसलिए जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए है ताकि वो एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को समझने की प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ. ठीक है. all those couples who are actually currently living in live-in relationships, only for this reason, because they are trying to understand each other's compatibility, so for this reason, if anyone are following live-in relationship, I completely support you. मेरा पूरा सपोर्ट है. लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप लिव इन रिलेशनशिप का. I have told you the first reason why people go into live-in relationships. Now I will talk about
the second reason, you know, now I'll talk about the second reason of why people go into live-in relationships. Now, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए दो कारण से लोग जाते हैं. कुछ लोग एक दूसरे को, मतलब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं. तो यदि ये कारण है तो मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा. लेकिन अब मैं बात करूँगा दूसरा कारण या फिर दूसरी कारण. नाउ इन दिस सेकेंड पॉइंट, or rather in this second reason as to why some people go for live-in relationships, it is because, you know, many of them, they just want to have, you know, they just want to enjoy different kinds of, you know, experience. And even, don't mind me saying this, even you know, many of them, they want to enjoy different types of sexual experience with multiple people. बहुत सारे पुरुष ऐसा है जिनको अनेक स्त्रियों के साथ सेक्सुअल, मतलब क्या सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करना चाहते हैं. और बहुत सारे लेडीज़ भी है जिनको अलग अलग पुरुष के साथ, मतलब सेक्स को एंजॉय करना है. तो यदि सिर्फ ये कारण के लिए, ओनली फॉर दिस रीज़न, इफ़ यू आर गोइंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप्स, देन दिस टाइप ऑफ लिव इन रिलेशनशिप I don't support. Don't mind me saying this, but this type of live-in relationship, me personally, I will not support it. जब आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हो, यदि आपका कारण, एज आई टोल्ड यू, नो एक्ट इज राइट और रॉन्ग बाय इटसेल्फ. ठीक है, हर चीज़ को अनेकांतवाद दृष्टि से देखना पड़ेगा. कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होते, कोई भी कार्य सही और गलत नहीं होते. लेकिन जो कार्य आप करते हो, उस कार्य के पीछे जो कारण होता है, जो वजह होता है, the reason behind the actions you do is what decides whether the actions you're doing is right or wrong. So now speaking about the second point, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ इस कारण के लिए है, जैसे कि मतलब पहले कुछ महीने तक आपको एक लड़की के साथ, मतलब हर जो शारीरिक चीज़ एंजॉय करना चाहते हो, उसके बाद आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, फिर आप एक नया गर्लफ्रेंड बनाया, और वैसे वाइस वर्सा, for both boys and girls, vice versa. Like, first let's say you have got a girlfriend or a boyfriend. For few months you want to spend time with that person, enjoy with that person, और एक बार उस व्यक्ति के साथ एक बार तृप्ति मिल जाए. Once that, after a certain time, when you feel that okay, मतलब ये पार्टनर के साथ मेरा अभी उतना I'm not able to enjoy as much as, I'm not able to enjoy as I would enjoy in the beginning. तब आप ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर को चेंज करके कोई नया पार्टनर लेके आएंगे. So if your intention is only to enjoy sexual activity with different people, if this is the reason you're going for live-in relationships, then this type of live-in relationship I completely do not support. As a person, as a Jain, and as a very modern Jain also. Okay? अगर
अगर आपका कारण सिर्फ भोग में लीन होने के लिए, आपको मान लीजिए यदि आपको उस पुरुष या स्त्री के बारे में आपको जानने के लिए कोई दिलचस्प नहीं है, you're not interested in you're not in I mean let's say a couple is not interested in knowing each other. जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जानने के लिए इच्छा नहीं रखते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भोग में लीन होने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, ऐसी या फिर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, दो टाइप का लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। पहला, जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं, एक साथ रहकर कुछ महीने के लिए या फिर 1-2 साल के लिए रहकर पुरुष और स्त्री एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं, एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को परीक्षा लेते हैं। यदि ये कारण है लिव इन रिलेशनशिप के लिए तो ठीक है, तो इस तरह लिव इन रिलेशनशिप को मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो दूसरे कारण मैंने बताया या फिर ये जो दूसरी कारण मैंने आपको बताया, ना ही पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की इच्छा है और ना ही स्त्री को पुरुष के बारे में जानने की इच्छा है, लेकिन सिर्फ शारीरिक भोग के लिए, जस्ट फॉर सेक्सुअल एंजॉयमेंट एंड जस्ट फॉर सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन, यदि पुरुष और स्त्री बस शारीरिक भोग में लीन होने के लिए यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो और हर कुछ महीने के बाद आप सिर्फ मतलब नया पार्टनर्स को चेंज करते जा रहे हो, तो फिर इस तरह लिव इन रिलेशनशिप को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। दिस टाइप ऑफ लिव इन रिलेशनशिप as a person and as a Jain, I will not support it. And I'm sure a lot of modern people will disagree with me on this point, but I'm letting you know my opinion, okay? And also I'm sure a lot of so-called religious people, they will disagree with me for the first point, but I'm letting you know my opinion. So, the message of this video is, unlike open relationships, okay, unlike in open relationships, when you talk about live-in relationship, okay, it is understand that unlike in open relationships, in live-in relationships, you are not, I mean, like, you know, at a time you are not going to multiple partners at a time, unlike in open relationships. But in live-in relationships, if your intention is, अगर आपका उद्देश्य, if your intention is to understand each other, a boy and a girl, if your intention is to understand each other, and if your intention is to understand each other's compatibility before getting married, then this type of live-in relationship is totally fine, and you know, I personally support it. I will support it. But as I told you, the second reason, जो दूसरी कारण है, both the boy and the girl are not at all interested in knowing each other, but both of them are living in an live-in relationship only for this reason, because they want to enjoy sexual activities, for a period of time with one person, then for another period of time with another person, then for another period of time with another person. मतलब ये जो दूसरी कारण है, ये जो दूसरी कारण है, कुछ कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं
सिर्फ शारीरिक भोग में लीन होने के लिए यदि लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं कंडेम नहीं करता। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कंडेम एनी लिव इन, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नेवर एवर गोइंग टू कंडेम एनी लिव इन रिलेशनशिप्स। मैं ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को, ये जो दूसरी कारण है, ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को भी मैं कभी कंडेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको कभी सपोर्ट भी नहीं करूँगा। ओके, so if your intention is just to, you know, just to enjoy physical pleasure with one person for a period of time, then you want to enjoy, then you want to enjoy physical pleasure with another person for another period of time, मतलब सिर्फ शारीरिक भोग में लीन होने के लिए यदि आप लिव इन रिलेशनशिप कर रहे हो तो इस तरह लिव इन रिलेशनशिप को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इसको कंडेम नहीं करता हूँ, मैं इसको कंडेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। लेकिन जो पहला कारण है, या फिर जो पहली कारण है, द फर्स्ट रीज़न, पहली कारण क्या है? जो पहली कारण है वो यही है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को टेस्ट कर रहा है शादी करने से पहले, और यदि दोनों कंपैटिबल हो तो वो लोग शादी के लिए प्रोसीड करेंगे। यदि इस कारण से लोग लिव इन, यदि पुरुष और स्त्री एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यदि वो लोग कुछ महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस तरह लिव इन रिलेशनशिप को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। दिस टाइप ऑफ लिव इन रिलेशनशिप आई कंप्लीटली सपोर्ट, 100% आई सपोर्ट। बिकॉज शादी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पुरुष और स्त्री का कंपैटिबिलिटी। शादी का बाकी जो सो कॉल्ड क्राइटेरियाज है, ऑल द अदर सो कॉल्ड क्राइटेरियाज, मतलब क्या पुरुष और स्त्री का धर्म एक है, क्या पुरुष और स्त्री का फाइनेंशियल इनकम एक है, क्या पुरुष और स्त्री का नेशनैलिटी एक है, क्या पुरुष और स्त्री का कल्चर एक है, या फिर वो पुरुष और स्त्री का एथनिसिटी एक है। ऑल द अदर सो कॉल्ड क्राइटेरियाज, nationality, cultural background, financial background, religion, tradition, all these caste, creed, religion, tradition, nationality, all these other so-called criterias are not the criterias for marriage. हर शादी के लिए, for every marriage, there is only one criteria. हर शादी के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, एक ही गोल्डन क्राइटेरिया है, ओनली वन गोल्डन क्राइटेरिया इज देयर, और वो है कंपैटिबिलिटी। हर शादी का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, उस एक क्राइटेरिया को वो पुरुष और स्त्री दोनों को वो क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, और वो क्राइटेरिया है कंपैटिबिलिटी। इफ द बॉय एंड गर्ल आर कंपैटिबल विथ ईच अदर, then that couple should proceed to marry each other. यदि पुरुष और स्त्री का धर्म एक है, यदि पुरुष और स्त्री का नेशनैलिटी एक है, यदि पुरुष और स्त्री का कास्ट एंड क्रीड एक है, बाकी सब कुछ एक है, all the other so called factors are, let's say, same between the two, लेकिन यदि वो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इस समाज में किसी को भी हक नहीं है उन दोनों को शादी करने के लिए, फोर्स करने के लिए। इफ अ बॉय एंड अ गर्ल आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर, नो वन हैज़ द राइट टू फोर्स देम टू गेट मैरिड, बिकॉज
यदि यदि दो लोग कंपैटिबल नहीं हैं और वो शादी कर लेते हैं, तो उनका ज़िंदगी नरक से बदतर बन जाएंगे. I can in fact write it and give it to you. Okay, all those people, I can write it and give it to you. Even if your religion is same, अगर आपका धर्म भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन आप अपनी पार्टनर के साथ यदि आप कंपैटिबल नहीं हो, तो आप ऐसी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहिए. हमेशा सिर्फ उस व्यक्ति से शादी कीजिए. हर पुरुष को उस स्त्री के साथ शादी करना चाहिए जिस स्त्री के साथ वो कंपैटिबल हो, और हर स्त्री को उन पुरुष के साथ शादी करनी है जिनके साथ वो कंपैटिबल हो. every man and every woman every man and every woman should choose their life partner only based on their compatibility and nothing else, because without compatibility that marriage is going to be worse than hell. Narak se badtar, worse than hell. One more thing I want to tell you. For example, let's say a boy and a girl are friends, okay? Not boyfriend and girlfriend, just friends, okay? एक पुरुष और स्त्री, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोनों के साथ अच्छी दोस्ती है. just because you have got a good bond of friendship with each other does not necessarily mean that both of you will be compatible as a couple. यदि एक पुरुष और स्त्री के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों एक अच्छा पति और पत्नी बन सकते हैं. यदि कोई पुरुष और स्त्री, यदि एक पुरुष और स्त्री के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, नियम से ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, नियम से वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों एक कपल बनकर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहेंगे. जस्ट बिकॉज see, you can be friends with a lot of people. See, as friends you come and go, you don't live with each other. आपके साथ बहुत दोस्त होंगे. You will have plenty of friends. Okay, outside you meet, you go to lunch together, you go for evening dinners together, you go for, let's say, picnic together, you go for camping together, you can do many things. But end of the day, all your friends, they will, end of the day, before going to bed, all of your friends, they will go to their homes, they will go to their houses, and you will come back to your house. So speaking about friends, you definitely spend time with your friends, but you don't live with them. दोस्तों में आप दोस्तों के साथ बाहर जितना भी मिल सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहकर कंपैटिबल रह पाओगे. See, because when it comes to living with each other, जब बात आते हैं कि एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना, एक दूसरे के साथ, तब क्या होते हैं, एक का लाइफस्टाइल, one person's lifestyle will start impacting the other person's lifestyle. For example, let's say someone who is your friend, just for example, let's say for 1 week or for 1 month, that friend will come and
live with you in your house. Believe it or not, but then for that time, for that 1 week or for that 1 month, as long as your friend is living with you in your house under the same roof, your lifestyle will impact that, your lifestyle will impact your friend, and your friend's lifestyle, will also have an impact on your lifestyle. And by chance, if both of your lifestyles clash, I mean, they will be, you both will not get along with each other very well. तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब लोग शादी करते हैं, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो एक दूसरे के, तो शादी करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है. तो यदि इस कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, यदि पुरुष और स्त्री कुछ टाइम के लिए एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के लिए यदि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं 100% सपोर्ट करता हूँ. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे, मतलब मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लिव इन रिलेशनशिप, द कपल हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंपैटिबिलिटी बिफोर गेटिंग मैरिड, दिस टाइप ऑफ लिव इन रिलेशनशिप आई कंप्लीटली सपोर्ट, 100% आई सपोर्ट. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरी कारण थी, सिर्फ शारीरिक भोग के लिए, शादी करने के लिए कोई प्लान नहीं है, एक दूसरे को जानने के लिए भी कोई प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भोग के लिए यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो, हर महीने पार्टनर्स बदलते जा रहे हो, तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ. लेकिन जो पहली कारण है, बस एक दूसरे को जानने के लिए और एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ताकि यदि वो पुरुष और स्त्री कंपैटिबल हो, तब वो दोनों आगे जाके एक दूसरे के साथ शादी करेंगे. तो यदि पुरुष और स्त्री का उद्देश्य ये है कि वो दोनों एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहा है शादी करने से पहले, तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करूँगा. ठीक है, बस यही मैसेज है इस वीडियो का. और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में भी, मतलब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके लिए जो पुरुष और स्त्री है, दोनों 18 साल के ऊपर होना चाहिए. ओके, दूसरे देश में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा भारत देश में कानून है, लॉ है. हाँ ठीक है, यदि एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बिना शादी करके रहना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं. लेकिन वो दोनों पुरुष और स्त्री का, जो पुरुष और स्त्री जिसके बीच में जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उन दोनों का उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, या फिर 18 साल होना चाहिए, या फिर 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन इंडिया anyone who is below the age of 18 is considered as a minor, और कोई भी माइनर्स को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए. a boy and a girl, any boy and girl who are minors, who are below the age of 18 should not go for live in relationships.
सिर्फ वही लोग जो 18 साल से ऊपर है, वही पुरुष और वही स्त्री जो 18 साल है या फिर जो 18 साल से ऊपर है, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट करते हैं। our Indian law also supports those people who are above the age of 18। जो पुरुष और स्त्री 18 साल के ऊपर है, जो पुरुष और स्त्री 18 साल के ऊपर है और जो पुरुष और स्त्री adults है, those the boy and girl who are completely adults, they can, if they want, they can go and live in a live-in relationship even under the law and constitution, even under the law and the constitution of India। So मतलब even like सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ये लॉ पास किया है कि जो पुरुष और स्त्री 18 साल के ऊपर है, वो दोनों यदि चाहे तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मैं भी एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के बावजूद, मैं भी एक सच्चा जैन होने के बावजूद, और मैं भी एक सच्चा मतलब क्या, एक सच्चा मॉडर्न जैन होने के नाते मैं वो लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करूँगा जिसके पीछे कारण ये है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जानने के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि यदि वो दोनों कंपैटिबल है तो वो लोग आगे जाके शादी करेंगे। लेकिन जो दूसरे कारण है वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जो पहली कारण है, if your intention is just to test the compatibility and to get to know your life partner before marrying that person, then this type of live-in relationship I support completely. I completely support. No problem. It is completely fine. It is not a crime. It is not a sin. But just for enjoying physical pleasures without having any plans to marry, just for physical pleasures, if you are going into live-in relationships, then this type of live-in relationship I don't support. So the conclusion is, me personally, I'm not going to condemn both types of live-in relationships, but I'm not going to support the second type of live-in relationship. I'm only going to support the first type of मैं सिर्फ वो लिव इन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करता हूँ जिसके पीछे कारण ये है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जानने के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि यदि वो दोनों कंपैटिबल हो तो आगे जाके वो लोग शादी करेंगे। तो ये जो पहला कारण है, so this first type of live-in relationship I completely support 100%. I don't care how many people agree with me or disagree with me, but this first reason, ये जो पहला कारण है जिनकी वजह से लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और यदि पुरुष और स्त्री का उम्र 18 साल से ऊपर है, तो यदि पुरुष और स्त्री का उम्र 18 साल से नीचे है तो मैं वो लिव इन रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। यदि मान लीजिए कि यदि पुरुष का उम्र 18 साल से ऊपर है और यदि स्त्री का उम्र 18 साल से कम है, तो मैं बोलूँगा कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। और यदि स्त्री भी 18 साल से ऊपर हो और पुरुष 18 साल से कम हो, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यदि दोनों पुरुष और स्त्री, बोथ द बॉय एंड द गर्ल, आर अबव द एज ऑफ 18,
वो लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों 18 साल से ऊपर है, और दोनों को शादी करने और दोनों को शादी करने के लिए प्लान है, और वो दोनों शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, यदि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कुछ महीनों के लिए या फिर 1-2 साल के लिए, तो ऐसी लिव इन रिलेशनशिप्स को मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करूँगा। ठीक है, बस इस वीडियो को बहुत लंबा रखने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिए, मेरा मैसेज को समझिए, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ ठीक से समझ लीजिए, और इस वीडियो को मतलब बहुत सारे लोगों के साथ अवश्य शेयर भी कीजिए। और एक और बात, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 18 साल से ऊपर है। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज पीपल हु आर बिलो द एज ऑफ 18। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। सो I really thank all of you for watching this video with patience until the end, and please continue to subscribe to my channel, continue to watch my videos, and continue to like and share my videos as much as possible. And very soon I'll catch all of you in my next video. So till then, please take care, stay safe, be healthy, be wealthy, eat well, exercise well, stay healthy, and take care. I'll catch all of you very soon. Have a nice day. Thank you. जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, भारत माता की जय हो।